عمران خان صاحب معافی مانگیں گے تو میں پہلے کچھ چیزیں کلیئر کر دوں، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے، کہ بعد میں کوئی پھڈا نہ ڈال دیں۔ اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں کہ ایکچولی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کیا عمران خان معافی مانگے گا، یا عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے، یا عمران خان معافی مانگنے کے لیے راضی ہو جائیں گے؟ اس کے لیے پہلے آپ ایک چیز فرض کر لیں، یا آپ اپنے دماغ میں یہ بٹھا لیں کہ عمران خان نے اقتدار نہیں لینا، ان کی سیاست میں دلچسپی نہیں ہے، اور وہ انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ فرض کریں وہ نظام سے کچھ بھی نہیں چاہتے، ساری چیزیں، ساری سیاست، فائدہ نقصان سیاسی، وہ سارا ایک جگہ پہ آپ الگ رکھتے ہیں۔ صرف آپ عمران خان کی شخصیت کو سٹڈی کریں، جس کو آپ سائیکولوجیکل انالیسس کہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ذہنی کیفیت ہے کیا، یا ایکچولی عمران خان کیا ہے۔ اگر آپ نے عمران خان کو سمجھ لیا تو آپ کو یہ سمجھ بھی آ جائے گی کہ یہ شخص معافی مانگے گا یا نہیں مانگے گا۔ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے اپنے دماغ میں آپ یہ رکھیے، کم سے کم اس ویلاگ کو سنتے ہوئے، کہ عمران خان کوئی لیڈر نہیں ہے۔ آپ اپنے دماغ میں یہ رکھ لیں مثال کے طور پہ، اور اپنے دماغ میں آپ یہ بھی رکھ لیں کہ عمران خان جو ہے وہ کوئی نہ وہ لیڈر ہے مثال کے طور پہ، نہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو دوبارہ اقتدار میں آنا ہے، نہ وہ ملک اور قوم کے لیے کوئی چیزیں ابھی سوچ رہے ہیں۔ آپ فی الحال اپنے دماغ میں یہ رکھ لیں۔ اب صرف آپ یہ دیکھیں کہ ایکچولی عمران خان ہے کیا، وہ بنے کیسے، ان کے پاس کیا سٹیٹس ہے، اور وہ معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے۔ آپ کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ جو بڑے بڑے سٹیکس ہیں نا، ملک، حب الوطنی، پاکستان کے لیے سوچ، پاکستان کی عوام کا درد، یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ یہ بڑی چیزیں جب ہم ساتھ جوڑ دیتے ہیں نا تو چیزیں اور کمپلیکس ہو جاتی ہیں۔ آپ ان کو سائیڈ پہ رکھ لیں۔ اب آپ آ جائیں صرف عمران خان۔ اگر عمران خان ذاتی طور پہ ایک آپ یہ کہیں کہ ان ساری چیزوں سے مبرہ بھی ہو جائیں، ان سے باہر بھی نکل جائیں، تو ایکچولی عمران خان کیا ہے، آپ اس کو سمجھیے کہ وہ کیا ہے جس سے معافی کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ معافی کیوں کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگے۔ یعنی عمران خان گرفتار ہے، جن لوگوں نے 9 مئی کے جن کے اوپر الزامات ہیں ان میں بیشتر لوگ گرفتار ہیں، یا وہ مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، کچھ لوگ ملٹری کی کسٹڈی میں بھی ہیں، ملٹری کورٹس کے اندر بھی کیسز چلتے رہے ہیں۔ یہ سارے معاملات عدالت میں پینڈنگ ہیں۔ پھر عمران خان سے کیوں کہا جائے کہ وہ معافی مانگے؟ پھر تو انصاف ہونا چاہیے نا۔ اصولی بات یہ ہے کہ بندے اندر ہیں یا باہر ہیں، سارے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، تو پھر تو انصاف ہونا چاہیے، پھر تو معافی کا تقاضا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یعنی یہ جو معافی کا تقاضا ہے، اس سے ایک چیز تو سمجھ آتی ہے کہ سسٹم اس چیز کو سمجھ گیا ہے کہ عمران خان ارریلیونٹ نہیں ہے۔ کم سے کم عمران خان اور اس کی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے نقطہ نظر سے اتنے ریلیونٹ ضرور ہیں کہ ان کے بغیر کام آگے نہیں بڑھے گا، لہذا ان کا واپس آنا بھی ضروری ہے۔ اب ان کے واپس آنے کے لیے گنجائش کیا نکالی جائے، تو اس میں ایک معافی کا ایلیمنٹ ہے کہ جناب معافی مانگ لیں۔ یہ گنجائش نکل جاتی ہے تو عمران خان صاحب سسٹم کے اندر واپس آ جائے تاکہ سسٹم بھی اپنا کام کرتا رہے۔ یعنی معافی کی تبھی آئے گی نا چیز۔ عمران خان نے تو نہیں کہا کہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، یا ان کی طرف سے کوئی ڈیل کی خواہش بھی نہیں آئی، انہوں نے اپنے منہ سے کہا بھی نہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بات چیت تو میں کر سکتا ہوں، ڈیل میں نہیں کروں گا، اپنے موقف سے نہیں ہٹوں گا، یہ ان کا موقف ہے۔ اب یہ معافی والی بات آتی کہاں سے؟ یعنی جتنے صحافی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے، یا حکومت کے قریب ہے، یا ریاستی بیانیے کو بتاتے ہیں، یا سسٹم کے اندر رہ کے کام کر رہے ہیں، وہ صحافی بار بار یہ نقطہ نظر لے کر آتے ہیں معافی والا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ معافی کا ایک تقاضا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان معافی مانگ لے، اور یہ وہ گنجائش ہے جو عمران خان کے لیے نکالی جا رہی ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ سسٹم یہ بات سمجھ گیا ہے کہ عمران خان کے بغیر سسٹم کا چلنا اور آگے بڑھنا پاکستان میں مشکل ہے، لہذا یہ ارریلیونٹ نہیں ہے، سٹل ریلیونٹ ہے، تو اس کو واپس آنا پڑے گا یا لانا پڑے گا۔ تو اس کے لیے کوئی گنجائش نکالی جائے، تو آج تو یہ بات آ رہی ہے معافی، ہو سکتا ہے مستقبل میں کچھ اور ہو، یا ہو سکتا ہے پاکستان کے حالات کچھ ایسے ہوں یہ معافی عمران خان کو مانگنی نہ پڑے۔ یہ ساری چیزیں ابھی چھوڑ دیں، عمران خان کی جو شخصیت ہے وہ کیا ہے، ذرا اس کا انالیسس کر لیتے ہیں۔ دیکھیں خبریں بہت ساری ہیں، وہ باقی لوگ آپ کو ویلاگز میں بتا دیں گے، خبریں آپ کو مل جائیں گی۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکچولی عمران خان کیا ہے، اور معافی مانگے گا یا نہیں مانگے گا۔ سسٹم چاہ رہا ہے کہ عمران خان معافی مانگے، کیونکہ سسٹم چاہ رہا ہے کہ عمران خان سسٹم میں واپس آئے۔ معافی مانگے گا تو واپس آئے گا نا، عمران خان نے تو کوئی اس پہ بات ہی نہیں کی، سسٹم یہ بات کر رہا ہے کہ معافی مانگے اور سسٹم میں واپس آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان ارریلیونٹ نہیں ہوا ابھی تک۔ 22 سال اس آدمی نے سیاست کے اتار چڑھاؤ دیکھے، جیل میں گیا، مار بھی کھائی، مفرور بھی رہا، کبھی ادھر بھاگتا رہا، کبھی ادھر بھاگتا رہا، پورے پاکستان کے لگاتار دورے کرتا رہا، بڑی بڑی یونیورسٹیز کا یہ شخص چانسلر بھی رہا ہے، یہ صرف کمنٹری کرتا تو دنیا بھر سے پیسہ کما لیتا ہے۔ سب سے زیادہ ڈیمانڈ اس آدمی کی ہے آج بھی۔ کوئی ورلڈ کپ آپ کروا لیں اور وہاں پہ آپ بولی کروا لیں کہ سب سے مہنگا کمنٹریٹر کون ہوگا، تو عمران خان سے مہنگا کوئی نہیں ہو سکتا، یہ سب جانتے ہیں۔
जो स्टेटस उसका है वो किसी को नहीं मिला क्रिकेट की दुनिया में। तो यानी इंडिया में इमरान खान साहब की इतनी फॉलोइंग है कि उस दौर में यानी बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि कपिल देव से ज्यादा इंडिया में इमरान खान मकबूल था, ऑस्ट्रेलिया में उनके क्रिकेटर से ज्यादा और इंग्लैंड में उनके क्रिकेटर से ज्यादा इमरान खान की मकबूलियत थी। ये इतना तगड़ा आदमी था अपनी फील्ड का, हीरो आगे बढ़ता चला जा रहा। 21 साल का करियर वहां पे हीरो, उसके बाद 5-6 साल लग गए सियासत में आने में, अस्पताल बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, फिर हीरो, और अब सियासत के अंदर आ गया। सियासत के अंदर इमरान खान टाइम गुजारते गुजारते लगातार 22 साल की मेहनत के बाद वजीर आजम पाकिस्तान बन गया। अब वजीर आजम पाकिस्तान बनने के बाद इमरान खान ने वो काम करने शुरू किए जिनसे वो लोगों की नजरों में हीरो बन सके। गौर कीजिएगा आप, मैं अभी पब्लिक की अच्छाई की बात नहीं कर रहा, मैं पब्लिक की खिदमत की बात नहीं कर रहा, मैं वो सारी चीजें, हुब्बुल वतनी, लोगों का दर्द, वो चीजें मैं कह ही नहीं रहा। वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें, मैं तो सिर्फ इमरान खान की नॉर्मली साइकोलॉजिकल एनालिसिस एक ऐसे शख्स का करना हो तो मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। अब 2018 में वजीर आजम पाकिस्तान बनने के बाद जिन कामों पे मुझे अचानक लगा ना ये हटके है थोड़ा, गरीबों के लिए पनाह गणाएं बना दी, बहुत सारी जगहों पे लोगों को मुफ्त खाना खिलाना शुरू कर दिया, लंगर खाने शुरू कर दिए, यानी वो काम जो पहले नहीं हुए। हर आदमी की जेब में एक कार्ड डाल दिया, हेल्थ कार्ड, 10 लाख रुपए तक का इलाज है, जाओ जाके मुफ्त करवाओ। तो वो काम कर रहा था जो पाकिस्तान में पहले किसी ने नहीं किए थे, हीरो बन रहा था। हीरो एब्सोल्युटली नॉट। क्या था ये? उसके अंदर का हीरो है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, ये उसके अंदर का हीरो है। उसको कॉन्फिडेंस ही बहुत था, इतने लंबे अरसे से चला आ रहा है। अब लगभग उसको 50 साल होने वाले हैं, लगभग 50 साल हो गए, वो कंटिन्यूसली हीरो चल रहा है, एक आदमी, कौम का हीरो। एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं इसमें, और उनको ये समझना पड़ेगा कि इमरान खान की जिद के अंदर, यानी आसिम मुनीर साहब को जिद है ना, मैंने इमरान खान को नहीं छोड़ना, क्योंकि वो आ जाएगा तो मुझे नहीं छोड़ेगा, उनको ये डर लगता है। अब आसिम मुनीर साहब का खौफ, उनकी अना और उनकी जिद, इन चीजों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। एक आदमी की जिद है कि मैंने, सारी फौज जानती है, एक फौजी जानता है, मेरा एक जवान जानता है कि इमरान खान बेगुनाह है। एक फौजी जवान ये बात जानता है कि इमरान खान बेगुनाह है, साइफर कोई जुर्म नहीं था, अपनी बीवी से शादी करना, इद्दत वाला केस, वो कोई जुर्म नहीं था, ये तोशा खाना से कोई तोहफा खरीद लेना, ये कोई जुर्म नहीं था, सारे ही खरीदते हैं, ये जर्नैल भी खरीदते हैं, ये सियासतदान भी खरीदते हैं, सबके पास होते हैं, इमरान खान की बीवी ने भी खरीद लिया, ये कोई जुर्म नहीं था। ये सारे फौजी जानते हैं, मेरा एक जवान, चाहे वो बॉर्डर में खड़ा हुआ है, चाहे वो इस्लामाबाद में है, चाहे वो GHQ में है, चाहे वो किसी भी ड्यूटी पे है, चाहे वो किसी बैरक के अंदर है, मेरा एक जवान पाकिस्तान का फौजी ये जानता है कि इमरान खान बेगुनाह है। ये सिर्फ फौज के सरबराह आसिम मुनीर, जो अभी सरबराह है इस वक्त, हमेशा तो नहीं रहेगा। इमरान खान के वकील ने मौके से फायदा उठाया, सलमान सफदर ने, उन्होंने चीफ जस्टिस को जाकर बताया, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस को कि जनाब 5 महीनों में इमरान खान से एक मुलाकात हुई है, वो भी 10 मिनट की हुई है। अब सर्दियां खत्म हो रही हैं, एक हफ्ते बाद रमजान शुरू हो रहा है, रमजान में जमानत की दरखास्तें अदालतों की तरजीह होती है, बाहर खड़े होकर उन्होंने बताया सारा। अगर रमजान में भी इमरान खान की जमानतों के केस नहीं लगते तो ये सिस्टम कोलैप्स तस्वर होगा। उन्होंने कहा जी ओवरऑल सूरत बहुत अलार्मिंग है। जो इमरान खान साहब का साइफर वाला केस है वो जज साहब ने 3 रुकनी बेंच को भेज दिया है, और वो जज को भी ये भी बताते रहे जनाब मैं, आप मुलाकातें इनकी तो करवा रहे हैं आप, ये जो सरकारी वकील आ गए इनको तो मुशावरत के लिए आप वक्त दे देते हैं, लेकिन हमें भी मुशावरत के लिए वक्त देना, हम जाके अपने जो हमारा जो विक्टिम है, जो इमरान खान है, उससे मुलाकात तो करें। यानी हमारी मुलाकात आप इमरान खान से करने नहीं देते, हमें वहां पे आप डिस्कशन करने नहीं देते, हमारी मुलाकातें आपने बंद की हुई हैं, इनको आप फुल फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इस मौके पे उन्होंने ये बात की अदालत को, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। या अफरीदी साहब की भी ऐसा लगता है कि वो औकात नहीं है कि वो इमरान खान साहब की मुलाकात करवा सके, क्योंकि याद होगा शहबाज शरीफ को, चीफ एग्जीक्यूटिव है ना मुल्क का, कानूनी और आईनी तौर पर तो वही है, चाहे जाली सही लेकिन है तो सही। अब जब शहबाज शरीफ को सुहेल अफरीदी ने कहा कि जी मुलाकात करवा दें इमरान खान से, तो उसने क्या कहा था, शहबाज शरीफ ने कहा था कि पूछ के बताता हूं। और जब शहबाज शरीफ पूछ के बता रहा है, चीफ जस्टिस की क्या औकात है, तो सारे काबू आ गए, और ये अपनी मर्जी से काबू आए हैं। सिर्फ एक सीट के लिए पूरी की पूरी अदलिया का बेड़ा गर्क कर दिया या अफरीदी ने। या अफरीदी अगर हक पे डाका ना मारते मंसूर अली शाह के, तो मैं आपको बताता हूं कि अदलिया कभी भी ऐसी यरगमाल ना होती, अदलिया के एक हुक्म के ऊपर मुलाकात भी हो जाती। लेकिन आज या अफरीदी समेत कोई भी जज इमरान खान की मुलाकात उनके वकला से या फैमिली से नहीं करवा सकता जब तक आसिम मुनीर नहीं चाहेंगे। आसिम मुनीर ने कंट्रोल कर लिया ना, पूरी की पूरी अदलिया भी कंट्रोल हो गई है। तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं बड़ी तादाद में हाई कोर्ट्स के बाहर गए, वहां पे उन्होंने एहतजाज किया इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। और मामला यह है कि हाई कोर्ट्स में इमरान खान साहब के केसेस लगाए नहीं जा रहे। जब इमरान खान साहब को सजाएं सुनानी थी तो आधी रात तक अदालतें लगाई गई, जेल के अंदर जो है वो जजों को पहुंचाया गया,
पूरा सिस्टम इसी काम पे लगा हुआ था कि जल्द अज जल्द सजा सुनाई जाए, ताकि जितनी इमरान खान को सजा सुनाएंगे उतनी लोगों में मायूसी होगी और लोग वोट नहीं डालेंगे। लेकिन फिर लोगों ने मुस्तरद किया उस सारे जुल्म को और बर्बरियत को, और लोगों ने बाकायदा निकल कर वोट डाले और 8 फरवरी को सारा नक्शा बदल दिया। अब उसके बाद से ये निजाम इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का आइन भी तब्दील कर दिया, वहां पे आईनी अदालतें भी बना दी, पाकिस्तान की पार्लियामान पे कब्जा कर लिया गया, सारे के सारे स्ट्रक्चर को और निजाम को तब्दील कर दिया गया, बैन अल-अक़वामी सतह पे कंप्रोमाइजेस किए गए, पाकिस्तान के अंदर मादनियात तक अपनी जो है वो गिरवी रखने का फैसला कर लिया गया। ये सारा कुछ सिर्फ इमरान खान को जेल में रखने के लिए किया जा रहा है। तो क्या इतने आराम से इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाएगा? इमरान खान साहब के जल्द और आराम से छूट जाने का एक ही तरीका है कि इमरान खान साहब वो कंप्रोमाइज कर लें जो उन्हें करने के लिए पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट मजबूर कर रही है। अगर वो ये कंप्रोमाइज नहीं करते तो फिर उन्हें एक अवामी तहरीक चाहिए होगी, एक ताकतवर अवामी तहरीक, जिसके नतीजे में बैन अल-अक़वामी दबाव बढ़े और इमरान खान साहब बाहर आ जाएं। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोगों ने यह साबित किया कि वो फस्तायत के सामने झुक नहीं रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओहदेदारान हैं या जो अरकान असेंबली हैं, वो हाई कोर्ट्स के बाहर पहुंचे, स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में आलिया हमजा साहिबा और बाकी लोग। तो केसेस लग नहीं रहे। आज केस लगना चाहिए था। इमरान खान साहब का जो वादा किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस, जिन्हें लाहौर से स्पेशली लाया गया था डोगर साहब को इसी मकसद के लिए कि एक ऐसा जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचाया जाए जो इमरान खान साहब के लिए किसी किस्म का भी जो है वो रिलीफ ना दे, और यानी एक्चुअली तो इमरान खान साहब को टैकल करना था। तो जज पहुंचाया गया और एक जूनियर जज को लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचा के सीनियर बनाया गया और फिर उन्हें कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया। अब वो कायम मकाम चीफ जस्टिस केस लगने ही नहीं दे रहे। वादा किया हुआ था, इस हफ्ते का फिर नहीं लगा और अब एक नया वादा कर लिया उन्होंने। और उन्होंने क्या किया, उनके दफ्तर ने एक वादा किया है इस एहतजाज के नतीजे में। इमरान खान साहब की बहनों ने और बाकी लोगों ने क्या कहा वो बाद में बताता हूं। और याद रखिएगा, ये डबल बेंच का आखिरी दिन होगा, उसके बाद डबल बेंच नहीं बैठना। तो ये फिर हंगामी केसेस तो लगते रहेंगे, लेकिन छुट्टियों पे चले जाएंगे सारे जज, फिर मामला खत्म हो जाएगा। लिहाजा इमरान खान साहब ऐसे बाहर तो नहीं आते। अलीमा खान साहिबा से जब ये पूछा गया कि क्या इमरान खान साहब ईद से पहले बाहर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे थे ना, बार बार ये दावा हो रहा था कि ईद से पहले इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। तो वो जो दावा था कि ईद से पहले इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, इमरान खान की बहन के सामने रखा गया। अब रियल सिचुएशन तो उनके पास है, वुकला से भी पूछती हैं, पार्टी से भी पूछती हैं, इमरान खान साहब से भी वो लोग मिलते हैं। दूसरी बहनें आज 2 जाकर मिलकर भी आई हैं जिन्हें इजाजत मिली है। यानी इमरान खान की बहन अलीमा खान को तो आज भी शायद नहीं मिलने दिया गया, बल्कि 2 बाकी बहनों को मिलने दिया गया, वो जाकर मिलकर आई हैं। वो इमरान खान साहब ने क्या कहा वो मैं आपको नेक्स्ट वीलॉग में सारी तफसीलात आपके सामने रख दूंगा। इकट्ठी सारी हम कर लेते हैं कि क्या क्या इमरान खान साहब ने कहा। लेकिन अलीमा खान साहब ने कहा कि कौन कह रहे जी कि इमरान खान ईद से पहले बाहर आ रहे, उन्हें बताया गया जी बैरिस्टर गौर ने कहा। तो उन्होंने कहा पता नहीं बैरिस्टर गौर कहां से ये खबर ले आते हैं या लाते हैं, कोई रिहाई इमरान खान साहब की नहीं हो रही। केस लगेगा तो रिहाई होगी ना, केस ही नहीं लग रहे तो रिहाई कैसे होगी। अब 5 तारीख दी गई है, 5 तारीख को फिर डेट मांग ली जाएगी तो फिर रिहाई नहीं होगी। और 5 तारीख को क्या गारंटी है कि जजेस आएंगे और बैठेंगे और 5 तारीख भी मिल जाएगी, इसकी गारंटी कोई नहीं है। वैसे तो इमरान खान साहब जो हैं वो आधे घंटे का काम है। अदालत अगर केस को सुने और इंसाफ करे तो आधे घंटे में इमरान खान साहब की रिहाई हो जाती है। ये इमरान खान साहब की पार्टी के तमाम लोग, उनके वुकला, उनकी बहन, ये सब लोग ये कहते हैं कि ये बहुत आसान है। इमरान खान साहब की जो 3 बहनें हैं, उन्होंने उनकी आंख में जो तकलीफ है उसके हवाले से तीनों ने अलग अलग बयानात दिए। क्योंकि असदुल्ला खान साहब की यह खबर थी, उन्होंने ये खबर दी कि इमरान खान साहब की दाई आंख के अंदर एक प्रॉब्लम है और उन्हें ऑपरेशन की जरूरत है, और इस ऑपरेशन के लिए डॉक्टर्स को मजबूर किया गया कि आप अडियाला जेल में कर लें। लेकिन डॉक्टर ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि हमें प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में, और यहाँ पे ऑपरेशन के लिए तमाम सहूलियात मुयसर नहीं है जेल में, लिहाजा इमरान खान साहब को अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। ये पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स हैं और ये गुज़िश्ता चंद दिनों से चक्कर लगा रहे हैं अडियाला जेल के बकौल असदुल्ला खान साहब के। अब इस पे तीनों बहनों का मौक़िफ़ क्या है। सबसे पहले उज़मा खानम जो इमरान खान साहब से आखिरी मुलाकात करके आई थी, उनकी मुलाकात हुई थी सबसे आखिर में बहनों में। तो उज़मा खानम ने कहा कि इमरान खान साहब ने मुझे बताया था कि उनकी आंख में तकलीफ है और इसके लिए वो कोई आई ड्रॉप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कंफर्म किया कि आंख में तकलीफ जरूर है और उसके लिए कोई वो आई ड्रॉप्स इस्तेमाल कर रहे हैं।
لیکن اتنا ڈیٹیل میں ان کو نہیں پتا تھا۔ عمران خان صاحب کی دوسری بہن علیمہ خانم، انہوں نے اس خبر کو لے کر شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔